اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا جو ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ ہوا ایک لفظ نہیں ہے، ہوا جملہ ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہے، دونوں لفظ ایک ایک حرف پر مشتمل ہیں۔ ان میں پہلا لفظ جو ہے وہ گول والی ہے اور دوسرا واو ہے۔ پہلا گول والی ہے اور دوسرا واو۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ گول والی ہے جو ہے اس کے معنی کیا ہے اور واو کے معنی کیا ہے۔ اور گول والی ہے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے کسی بھی شے کی طرف اشارے کے لیے۔ گول والی ہے کسی بھی شے کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب جب کسی شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اشیاء تو غائب بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں۔ آیا کہ غائب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا پھر حاضر کی طرف، یہ واضح کرنا پڑے گا۔ پھر غائب دو ہیں، ایک ماضی ہے ایک مستقبل ہے، ماضی بھی غائب مستقبل بھی غائب۔ جو حاضر ہے وہ کیا ہے؟ حال جو ہے وہ حاضر ہے۔ یعنی اگر غائب کی طرف اشارہ کیا، ایسی شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو کہ غائب ہے، جو موجود نہیں ہے، تو وہ پھر دو طرح کے اشارے ہوں گے، یا تو ماضی کی شے ہے یا پھر مستقبل کی شے ہے۔ تو یہ گول والی ہے جو ہے، جو اعراب ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر سب سے پہلے یہاں پر اعراب کو سمجھ لیں، آگے جانا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ ایک لائن لگائیں، یہاں سے ترچھی جیسے ڈلوان ہوتی ہے، یہاں سے ایسے لائن لگائیں، وہ لائن اوپر سے ایسے نیچے آ رہی ہے، یہاں سے گول چکر کھا کے پھر نیچے سے پھر آگے جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لائن ادھر سے چلتی آ رہی، یہاں سے گول چکر پھر نیچے سے آگے جا رہی، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں وقت کی لائن، وقت کی پٹی، وقت۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وقت۔ تو یہ جو درمیان گول ہے اس کے اوپر پیچھے ایک لائن ہے، یہ پیچھے جو ہے یہ ماضی ہے، اور جو آگے ہے نیچے لائن وہ ہے مستقبل، اور جو درمیان میں گول دائرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سرکل، جو کہ آپ دیکھتے ہیں اس وقت ہر شے سرکل کے اندر چل رہی ہے، سرکل کے اندر چلتی چلتی آگے جا رہی ہے، ہر شے سرکل کے اندر ہے، اور جیسے کہ ایک بال ہے وہ گھومتی گھومتی آگے جا رہی ہے، آگے جا رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ گول والی ہے جو اشیاء کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اشیاء ہیں۔ تو یہ اب ان تینوں کو الگ کریں گے، توڑیں گے، تو جو پیچھے والی لائن ہے وہ الگ کریں گے، وہ زبر بن جائے گی۔ جو آگے والی لائن ہے اسے الگ کریں گے، وہ مستقبل بن جائے گا، آنے والا وقت، پیچھے گزرا ہوا وقت، زبر اور زیر۔ اور جو درمیان میں گول دائرہ ہے وہ اشارہ ہے اشیاء کی طرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شے کی طرف اشارہ ہے؟ غور کیجئے گا۔ اگر تو موجود شے کی طرف اشارہ ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ شے جو سرکل کے اندر ہے اور اس کے بعد آگے جائے گی، تو گول والی ہے کے نیچے زیر جوڑی جائے گی تو وہ بن جائے گی پیش۔ پیش کے معنی بنیں گے کہ وہ شے جو موجود ہے، موجود حال کا صیغہ بنا دے گی پیش۔ اور واو جو ہے جب کسی لفظ کے آخر میں یعنی وہ جڑتا ہے تو وہ بھی حال کا صیغہ بنا دیتا ہے، واو اور پیش۔ زبر اور الف، زیر اور یہ کیا کرتے ہیں؟ زبر اور الف ماضی کا صیغہ بنا دیتے ہیں، ماضی کے وقت کی بات کرتے ہیں، واو اور پیش حال کی بات کرتے ہیں، اور جو زیر اور یہ ہے وہ مستقبل کی بات کرتے ہیں، مستقبل کا صیغہ بنا دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، زیر کسے کہتے ہیں؟ جر، بہنے کو، بہ کی ہے کوئی شے تو آگے جاتی ہے۔ اب کسی لفظ کے نیچے دو زیریں آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جتنا وہ شے آگے سے آگے جا سکتی ہے، جتنا اس میں پھیلاؤ آ سکتا ہے۔ یعنی کیا معنی بنے گا؟ مثال کے طور پر لفظ رسول ہے، رسول کے نام کے نیچے دو زیریں لگا دی تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی رسول ہو سکتے ہیں، یہ بن جائے گا جمع کا صیغہ، کل رسول۔ لفظ نبی ہے، اس کے نیچے دو زیریں لگا دیں، یہ بن جائے گا جمع کا صیغہ، جتنے بھی رسول ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دو زبریں لگائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو روک لگانی پڑے گی، کیونکہ زبر ماضی میں لے کے جاتی ہے، دو زبریں جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے ہیں، جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ روک لگانی پڑے گی۔ یہ عربی کا اصول ہے کہ جہاں بھی دو زبریں استعمال ہوگی وہاں الف لازم استعمال ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ الف جو ہے پہلے رکاوٹ لگاتا ہے، بھائی اس سے پیچھے جانا ہے، آگے نہیں، یہاں سے پیچھے جانا ہے، پیچھے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، جتنا پیچھے جا سکتے ہیں۔ جیسے لفظ رسول، رسول کی لام کے اوپر جب دو زبریں آئیں گی تو ساتھ الف لگا جائے۔ الف کا مطلب کیا؟ اب یہاں سے اپنے پیچھے جانا ہے، کتنا پیچھے؟ دو زبریں آئیں گی تو جتنا پیچھے جا سکتے ہیں، تو جتنا پیچھے جائیں گے کتنا جائیں گے؟
रसूल कम से कम होते हैं, कम से कम होता कम से कम एक रसूल है, तो रसूला या रसूलन इसका मानी क्या बनेगा? एक रसूल। यानी दो जबरें आएंगी तो जितना पीछे से पीछे जा सकते हैं, शाह को सुकेड़ा जा सकता है, पीछे ले जा सकता है। अगर दो जेरें आएंगी तो जितना फैलाव आ सकता है, जबर आएगी माजी का सीगा, जेर आएगी मुस्तकबल, और गोल वाली हे के साथ जेर जुड़ जाएगी जो कि पेश बन जाएगी, ये बन जाएगा हाल। और एक होती है दो पेश, एक पेश होती है और एक उल्टी पेश होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब गोल वाली हे जो है वो और साथ जेर जुड़ी, ये पेश बन गई। गोल वाली हे जो है ये इशारा करिए शय, और आगे जेर जो साथ जुड़ी पेश बन गई, तो शय कौन सी शय? वो शय जो आगे जा रही है। और कहां तक आगे जा रही है? यहां तक थम गई, यहां तक, यहां मुस्तकबिल में यहां तक गई, यह पेश, यहां तक शय। यहां से फिर गोल वाली हे, गोल वाला दायरा बना के फिर वापस ले जाते हैं। यानी शय यहां आई, यहां से फिर ये शय यहां पर मौजूद है, इसके बाद फिर वापस जा रही। मतलब क्या कि जब दो पेश आती हैं, एक पेश सीधी एक उल्टी, तो इसका मतलब यह बनता है एक ऐसी शय जो अपने अव्वल से लेकर आखिर तक मौजूद है। जब तक मौजूद है उस पूरे वक्त का अहाता किया जा रहा होता है। तो ये थे अराब। और अराब ये क्या है? ये फितरत की जुबान है। अराब सिर्फ जबान से आ ऊ ई करने के लिए नहीं है। किसी को आ ऊ ई जबान टेढ़ा मेढ़ा करना आता हो ना आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज यह है कि पता होना चाहिए आराब हैं क्या। जैसा कि मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर ले सकें लफ्ज अल्लाह, अल्लाह की जो हे है गोल है, इसके ऊपर जबर भी आती है, जेर भी आती है, पेश भी आती है। लेकिन आज तक किसी ने ये फर्क देखा? कोई भी फर्क नहीं देखा। सबके सब फर्क होता। अल्लाह जो है, अल्लाह कह रहा है मैं अजीजुल हकीम हूं। अल्लाह जो भी काम करता है उसमें राई बराबर भी फर्क नहीं करता, वो बिल्कुल परफेक्ट करता है। अगर कहीं कोई फर्क रखता है तो फर्क लाजिम है, लेकिन आज तक किसी ने यह फर्क जो है वो सामने रखा, मद्देनजर रखा? हर कुछ फर्क नजरअंदाज कर सकता है। जहां अल्लाह है वहां भी तर्जुमा अल्लाह, जहां अल्लाह ही है वहां भी तर्जुमा अल्लाह, जहां अल्लाह है वहां भी तर्जुमा अल्लाह। ये क्या मजाक है कि अल्लाह अजीजुल हकीम नहीं है? अमली तौर पर अल्लाह के अजीजुल हकीम होने का कुफर किया जा रहा है। बहरहाल ये चीज है कि अराब आपके सामने रख दी है। अब जरा गौर करें, कुल हुआ अल्लाह। हुआ क्या है? हुआ अल्लाह है। अब हुआ आपको बताया था, हुआ जुमला है, दो अल्फाज का मजमुआ है, एक गोल वाली हे है और एक वाव है। गोल वाली हे आपको पता चल गया कि शय की तरफ इशारा है। कौन सी शय की तरफ इशारा? गायब की तरफ या फिर हाजिर की तरफ? गायब दो हैं, माजी और मुस्तकबल। यानी अगर उस शय की तरफ इशारा किया जाएगा जो आगे मुस्तकबिल में आनी है तो गोल वाली हे के नीचे जेर आएगी, और अगर उस शय की तरफ इशारा किया जा रहा है जो पीछे माजी में जो गुजर चुकी तो गोल वाली हे के ऊपर जबर आ जाएगी। और अगर उस शय की तरफ इशारा किया जा रहा है जो इस वक्त मौजूद है तो गोल वाली हे के ऊपर पेश आ जाएगी। तो यहां देखें क्या है, यहां गोल वाली हे के ऊपर पेश है, तो मानी क्या बनेगा? उस शय की तरफ इशारा किया जा रहा है जो शय मौजूद है। अब आप जरा गौर करें कि आपको अपने इर्द गिर्द कुछ भी मौजूद नजर आ रहा है? कुछ मौजूद है? जब आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। मिसाल के तौर पर आपको दरख्त नजर आएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है क्या दरख्त अल्लाह है? नहीं, आगे इस सवाल का जवाब दिया जाए। वाओ, वाओ का मानी क्या है? और वाओ के ऊपर जबर है। जबर क्या करती है? आपको पहले बता दिया, माजी का सीगा बना देती है। तो अब हुआ के मानी क्या बनेंगे कि जो मौजूद है, जो कुछ भी मौजूद है, गौर करो उसमें, देखो क्या मौजूद है। जो मौजूद है और करते जाओ, दरख्त और चरिंद और परिंद और समंदर और पहाड़ और जमीन और चांद और सूरज और सितारे, यानी और करते जाओ जब तक कि और वाओ जो है और माजी का सीगा नहीं बन जाता, माजी में नहीं चला जाता। जब और खत्म होकर माजी में चला जाएगा और मिट जाएगा तो जो वजूद सामने आएगा वो क्या है? अल्लाहु अल्लाह है। अल्लाह की हे पर पेश है जो कि हाल का सीगा बना रही है। इसका मानी बनेगा अल्लाहु, इसका मानी बनेगा अल्लाह है। कुल जरा गौर करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार गौर व फिक्र का हुक्म दिया। तो जब आप गौर व फिक्र करेंगे, अल्लाह ने किसने गौर व फिक्र का हुक्म दिया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे कुरान में बार बार कहा कि जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है ये अल्लाह की आयात है, इनमें गौर व फिक्र करो, तुम्हें पता चल जाएगा अल्लाह क्या है। अपनी ही जात में गौर कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा अल्लाह क्या है। तो जब आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप किसी एक मखलूक में भी गौर करेंगे तो वो मखलूक आगे दूसरी मखलूक की तरफ ले जाएगी, वो अगली की तरफ ले जाएगी, वो अगली की तरफ ले जाएगी। क्यों? कि ये कायनात, ये वजूद बिल्कुल ऐसे है जैसे एक मशीन के अंदर पुर्जे होते हैं, जो हर पुर्जा दूसरे के साथ
रद्द कायम होता है। जैसे आपके जिस्म के अंदर मिसाल के तौर पर पूरा जिस्म छुपा दिया, जैसे नाखून नंगा है तो नाखून में गौर किया जाएगा, इसके पीछे पड़ा जाएगा तो आगे ये पोर आ जाएगी, उसके आगे यानी कि दूसरी पोर, उसके आगे पूरी उंगली आ जाएगी, इस तरह हथेली आ जाएगी, पूरा हाथ आ जाएगा, आगे बाजू आ जाएगा। ये और करते 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 एक वक्त आएगा कि और खत्म हो जाएगा और पूरा वजूद। तो ये है जब आप जमीनों आसमानों में गौर करेंगे, तफक्कुर करेंगे, सोचो विचार करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, तो ये और होता जाएगा। हु जो मौजूद है और हुआ होता जाएगा, और दरख्त और चरिंद और परिंद इस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, और जब करते जाएंगे एक वक्त आएगा और खत्म हो जाएगा। तो जब और खत्म हो जाए और माजी में चला जाए तो जो वजूद सामने आएगा वो क्या है? अल्लाहु अल्लाह है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह क्या, इसका मतलब ये दरख्त भी अल्लाह, समंदर भी अल्लाह, पहाड़ भी अल्लाह, वो भी अल्लाह, वो भी अल्लाह, वो भी अल्लाह। बाकी अल्लाह कहता है नहीं, इसका जवाब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। क्या है जवाब? ये आहदुन। आहद की दाल के ऊपर दो पेश हैं, एक पेश सीधी और एक उल्टी, और आपको बता दें इसका मानी क्या है, मतलब क्या है इसका, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो आहद क्या है? आहद दो अल्फाज का मजमुआ है, मुरक्कब जुमला है, शुरू में अलिफ है और आगे हद है। अलिफ शुरू में आए, अरबी का असूल है कि वो सवालिया बना देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर तो इसका मानी क्या है? अल्लाहु अल्लाह है, यहां सवाल ये पैदा होता है अल्लाह क्या है, आगे है अकबर, काबरा के पीछे अलिफ है, अलिफ सवालिया बनाता है, काबरा का मानी है बड़ा, तो अकबर के मानी बनते हैं क्या है बड़ा, क्या है बड़ा। तो जो बड़ा साबित हो जाए वो अल्लाह है, बहुत आसान है। बिल्कुल इसी तरह आहद, हद है और पीछे अलिफ है, अलिफ सवालिया बना देता है और आगे हद है। हद किसे कहते हैं? हद कहते हैं जिससे आगे कुछ है ही नहीं, जिससे आगे जाए नहीं जा सकता, जिसके आगे जाना नामुमकिन है, आगे आप जा ही नहीं सकते। तो आहद, आहद के मानी क्या है? वो जिसके आगे आप जा ही नहीं सकते, यानी आप और करते जाओ और करते जाओ, जब हद आ जाए आगे आप जा ही ना सकें तो वो क्या हो? एक ही वजूद, अहद एक ही, और कुछ है ही नहीं। जैसे आप अपनी ही जात में गौर करें, मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम इमरान है तो क्या नाखून को इमरान कहा जाएगा? नहीं। अगर पूरा जिस्म छुपा दिया जाए, नाखून नंगा रहे तो ये नाखून, इसे कहा तो नाखून जाएगा, लेकिन ये नाखून इमरान की आयत है, ये नाखून इमरान ही का वजूद नजर आ रहा है। और जब आप इसके पीछे पड़ेंगे तो ये और होता जाएगा, नाखून और उंगली और हथेली यानी और हाथ पूरा और बाजू, और इस तरह और करते करते जब और खत्म हो जाएगा तो फिर पूरा वजूद सामने आ जाएगा। पूरे वजूद को क्या कहा जाएगा? इमरान। पूरे जब और खत्म हो जाएगा तो तमाम अज़ा जो हैं, तमाम हिस्से जो हैं, उज़्व जो हैं, मखलूकात जो हैं, उनको जब एक वजूद के तौर पर देखा जाएगा तो वो इमरान है। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब ये नहीं है कि दरख्त भी अल्लाह, चरिंद भी अल्लाह, परिंद भी अल्लाह, ये भी अल्लाह, नहीं। ये दरख्त है, समंदर है और पहाड़ है, और करते जाओ। जब और खत्म हो जाएगा तो जब और खत्म हो जाए तो जो वजूद सामने आएगा वो एक ही वजूद सामने आएगा, और जो वजूद सामने आएगा वो कौन है? वो अल्लाह है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ये अल्लाह ही का वजूद नजर आ रहा है। ये दरख्त, चरिंद, परिंद, ये जो कुछ भी है ये अल्लाह की आयात हैं। आयात, आयत की जमा है। आयत कहते हैं पूरे वजूद का छुपे हुए होना, पूरी शय का छुपे हुए होना, उसका छोटा सा हिस्सा सामने होना, जिसमें जिसकी गहराई में जाने से, जिसके पीछे पड़ने से पूरा वजूद सामने आ जाए। किसका वो हिस्सा है जो नजर आ रहा है वो वजूद सामने आ जाए। तो जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है ये अल्लाह की आयात है। तो जब आप इन आयात के पीछे बढ़ेंगे, पर्दे को चाक करेंगे तो कौन सामने आएगा? जरा जब अल्लाह की आयत हो अल्लाह ही को सामने आना पड़ेगा ना, अल्लाह ही सामने आएगा ना। तो ये है कुल हुआ अल्लाहु अहद। बात यहां से शुरू नहीं हो रही कुल अल्लाह कह रही को। अल्लाह तो ये कह रहे हैं आपको बार बार यही दावत दिए, गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो, गौर फिक्र करो। जमीन आसमानों में गौर फिक्र करो, अपनी ही जात में गौर फिक्र करो। जब आप गौर फिक्र करेंगे तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे। जब आप जमीन आसमानों में गौर फिक्र करेंगे, किसी भी मखलूक में गौर फिक्र करेंगे तो वो मखलूक आगे दूसरी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे वजूद के अंदर
اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ربط قائم ہے. جیسے مشین کے اندر پرزے ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم ہوتا ہے، ایک پرزے کے پیچھے جائیں گے وہ دوسرے کی طرف لے جائے گا، وہ آگے کی طرف لے جائے گا، وہ اگلی کی طرف لے جائے گا، یہاں تک کہ پوری مشین نہ سامنے آ جائے گی. بالکل اسی طرح جب آپ کسی بھی مخلوق میں غور کریں گے، کسی کے بھی پیچھے پڑیں گے تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اور ہوتا ہوتا ایک وقت آئے گا اور ختم ہو جائے گا، پورا وجود سامنے آئے گا. جو وجود سامنے آیا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہے، اللہ، یہ ہے اللہ.